ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, आई होप सब लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, विल लर्न एरेज बहुत फास्ट, ये सब चीज़ें आप लोग बहुत बार कर चुके हो। मैं बस A to Z एकदम बच्चों जैसे पढ़ाऊंगा नहीं। यू हैव डन दिस इन योर मैं थोड़ा बहुत रिफ्रेशर कर दूंगा। आई थिंक दैट शुड बी फाइन। Okay, so without wasting any further time, we'll start. Okay, so what happens is, what do you, अगर basically what are arrays? Collection of similar types of data. Collection of similar types of data. ठीक है, and this data could be homogeneous. As of now, we'll learn about homogeneous. Heterogeneous part में बाद में बताऊंगा। ठीक है, जैसे for example मान लो मैं यहाँ पे if I go into my project, one second, SRC main Java में automation hub training. Okay, so let's say I'll create a new class. Okay, class का नाम मैं रखता हूँ arrays. Okay, इतना टाइम क्यों ले रहा है यार? Okay, हो गया, fine. So now, oh God, ये फिर not responding. Okay, finally मेरा Eclipse महान है. Okay, see, let's say for example हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. Oh God, this is again irritating. Okay, so let's say for example we are working on a project or any sort of कुछ भी एक टेबल पे काम करें या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, जैसे मान लो एक स्टूडेंट आईडी टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी टेबल है एंड समबडी सेज कि आपको डेटा स्टोर करना है। यू हैव टू स्टोर डेटा in your respective, for that respective organization or for anything like that. Let's say for example it's a college, so let's say there are 100 students. So आप क्या करोगे, इन student underscore id 1, let's say student id 1 का नंबर है 101. okay, ऐसे int student underscore id 2 equal to 102. so likewise if you keep following this trend, अगर आप ऐसे ही इसको बहुत लंबा बनाते जाओगे ना, इट वॉन्ट लुक वेरी गुड। मान लो मैं आपको बोलूँगा कि मुझे 100 स्टूडेंट्स को सेव करना है। आई डोंट नो व्हाई माय एक्लिप्स इज मिसबिहेविंग। वेट गाइस, ओके, सो मान लो आई हैव 100 स्टूडेंट्स or let's say 1,000 students. So just imagine if you reach to an extent wherein you write student underscore ID, the 1,000th student, uska ID is somewhere 10001. I mean, this does not look really good. Somebody is not in a mute state. Okay. So this does not look good. Okay. So, and what does this basically do? It will cramp your memory. Okay. It will become extremely heavy, and the other problem is it will slow down your execution. If you save a particular project for any organization or anything in this particular fashion, this will just ruin everything. I mean बहुत slow हो जाएगा। 10-12 ठीक है, but when it reach exceeds more than 100, it makes really no sense. So for this reason arrays are used, so that we don't have to practice this exercise quite a lot. ठीक है, so typically arrays are nothing but collection of similar types of data, इसीलिए मैंने homogeneous word use किया था। ठीक है, I'll tell you when it comes to heterogeneous, we'll learn about object arrays and everything, but as of now this is what it is. Now अभी array को declare कैसे करोगे? Array declaration is also important. If you are creating some array, you should know how to declare that particular type. So it's actually very simple. You can directly use, this is a syntax of declaring an array. It is nothing but a data type, whatever data type आपको int use करना है, char use करना है, double byte, जो भी
whatever Java objects you can consider, you can use that, and as simple as that. और array name को हम लोग identifier बोलते हैं, या फिर name तो identifier ही होता है. So this is a very simple syntax which you need to use. Okay, now let's say for example int data number, अगर मैं इसको ये लिख दूं, so this is what, this is an integer array. Type of array is integer. What is the name of the array, or whatever the identifier is, data number. As simple as that. आपको डबल लिखना है, आप डबल लिख लो ऐसे, डबल डेटा डॉब. So this is a double type array whose identifier name is data dog. So this is how you represent a simple kind of an array. ठीक है, this is the way you, and अभी और एक चीज़ है, how will you, the next thing is how many elements can any array comprise or hold or whatever. तो how will you decide this? So हमें मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगा. सी, पहले जब हम लोग int I equals to 10 करते थे, what happens in this case, please try and understand the concept here. int I equal to 10, मैंने आपको बोला था कि जावा का एक मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है, होम, जावा का एक मेमोरी लोकेशन. ओके, सो दिस, पता नहीं कैसे गड़बड़ होता है ये. ओके, जावा का एक मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है, उसको ये इसके अंदर, इस मेमोरी के अंदर वो 10 रहता है, और इसको हमारा ये रेफर करता है आई. ये होता है बाय द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है. सिमिलरली, बट इमेजिन, मैं इसीलिए तो बोला कि वो ट्रिक यूज करना ठीक नहीं है कि इंट स्टूडेंट आईडी, इंट आई जे के एल एम एन करते रहोगे, अलग अलग दोगे तो मेमोरी कितना ऐसे एक एक करके एक मेमोरी ऑक्यूपाई करता जाएगा ये, ठीक है. मान लो यहाँ पे आपने 20 कर दिया. सो ये चीज़ को हटाने के लिए हम वो यूज़ करते हैं एरे, ठीक है. सो हाउ वी स्टोर एलिमेंट्स इन एन एरे, इट्स वेरी सिंपल. इसका भी एक डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. अगर आपको एलोकेशन करनी है मेमोरी का, if you want to allocate memory to a particular array, you can simply write, let's say data point equal to, sorry, int, जो भी आप देना चाहो, you want to allocate something, int, let's say see, arrays का और एक मैंने और एक चीज़ नहीं बताई. You can do this, you can do this also. बहुत लोग उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नोमेनक्लेचर है फॉर राइटिंग एन एरे. मेनी पीपल टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड कि हम अगर इंट, एक इंटीजर एरे आई डिक्लेयर करूँगा, ओके, एंड इफ आई राइट इंटीजर एरे इज 1 2 3 समथिंग लाइक दिस, एंड इफ आई राइट इंट जे इक्वल्स टू समथिंग लाइक, तो ये बेटर प्रैक्टिस है या ये बेटर प्रैक्टिस है? अशरफ, इन दोनों में विच वन इज द बेटर प्रैक्टिस? हाँ हाँ, तो हमें आइडेंटिफायर के बगल में एरे रिप्रेजेंटेशन रखना चाहिए या डेटा टाइप के बगल में एरे रिप्रेजेंटेशन रखना चाहिए? ओके, देखिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में, ओके, अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो हम लोग सी दोनों ही रखोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम सेम करेगा, ठीक है. बट व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का नाम है रमेश मोटवानी, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है रमेश मोटवानी, ठीक है, और व्हाट इज इट, इट इज ए ह्यूमन डेटा टाइप, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, नामकरण के बगल में हम उसको
वो प्रिफर करते हैं। हालांकि ह्यूमन तो है, बट यहाँ पे उसको मान लो हमने उसको दे दिया ही सिंधी है, ठीक है। सो टेक्निकली दिस डज नॉट लुक वेरी गुड, तो मैं भी बेसिकली इसी को ही यूज करता हूँ कि जो आइडेंटिफायर है ना उसके बगल में ही एरे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो एनीवेज इट इज अप टू यू, ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, इट इज अप टू यू, आपको जैसे करना है कर सकती हैं। और एक वे ऑफ डिक्लेयरिंग एरे इज लेट्स से इंट के, आप ऐसे भी कर सकते हो, न्यू इंट, आप यहाँ पर साइज दे सकते हो, सॉरी, तो आप ये भी डिक्लेयर कर सकते हो, इट इज अप टू यू। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एन इंटीजर एरे एंड उसका आइडेंटिफायर क्या है, इट इज के, उसका साइज क्या है, साइज विल गेट टू नो। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे हम एक अच्छा मैं ये बता देता हूँ अभी, और एक चीज़ करते हैं, लेट्स से इंटीजर स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ पे मैं एक वो करता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेट्स से पूनम कॉमा अशरफ कॉमा निकी, मान लो ये 3 स्टूडेंट्स है, तो एरर क्यों दे रहा है, ये एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये एक इंटीजर एरे है और ये भाई साहब स्ट्रिंग है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था डेफिनेशन, हम लोग होमोजेनियस पे काम करेंगे, दैट इज सेम टाइप ऑफ डेटा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा। सो टिपिकली यू विल हैव टू राइट विच इज एन इंटीजर, और इंटीजर दैट टू एक जो अलाउबल रेंज है जावा का, कोई इतना बड़ा मन धड़न एक बड़ा सा वैल्यू नहीं डाल सकते, वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। अलाउबल रेंज के अंदर जो भी इंटीजर आप डालोगे वो अलाउ करेगा। और अगर इंटीजर एरे बना रहे हो तो आपको इंटीजर वैल्यू ही डिक्लेयर करनी पड़ेगी, चाहे आप नेगेटिव क्यों ना डिक्लेयर करो, नेगेटिव इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये काम करेगा। तो ये एक समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी अ, वो ऑब्जेक्ट एरे के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी ऑब्जेक्ट एरे के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी वन डिमेंशनल एरे और सिंपल बेसिक्स एरे का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एरे बनाएगा तो वो काम करेगा, नो नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो अभी ओके, सो अभी हम एक इंटीजर एरे बना दिए, वेरी सिंपल। नाउ अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा एक इंटीजर, लेट्स से इंट, कौन सा, हम्म हम्म, हाँ तो वो तो ऑलरेडी बता चुका हूँ ना मैं ऊपर, क्या बोल रहे, हाँ, यू मीन, ये, अच्छा सी, ये दिस इज अ प्रैक्टिस विच हम ऑटोमेशन इंजीनियर्स नहीं यूज करते, but again if you want you can use, so this will become more clear when you will learn collections। so इस चीज़ की प्रैक्टिस तभी होती है जब आप collections in java में strong होते हो। so okay, so this becomes more relevant when you start working on collections at a greater level। so उसमें क्या होता है ना कि you design your, आपका nomenclature of declaring something becomes so evident with the fact कि आप data type और अपना whatever variables you are declaring with the identifier, आप ये symbols के ऊपर काफ़ी focus करते हो, और वो symbols के अंदर symbols, मतलब a tree under a tree under a tree under a tree आ जाता है, map under a map under a, इंटीजर जनरली हम लोग नहीं लिखते, बट ये वो नहीं नहीं लिखते और कोई ज़रूरत भी नहीं है, आई मीन सी, हाँ यहाँ पर इंटीजर करना पड़ेगा, बट यार वी डोंट नीड दिस। Okay, now coming back to this form, integer is not a data type in it. Integer is not a character, not a keyword in Java. Int is a keyword in Java. So I would rather suggest you stick to something which is actually a keyword in Java.
ओके कल को it is doing more or less the same thing, but then I mean it is again up to you how you want to proactively use this. I don't use this, I don't recommend this also, because at some point of time you will only confuse your own scripting part of it. Why I'm not asking you to use this? Because see, in an environment where we all are working together, somebody might, you are declaring int, another person is declaring integer, so that person might get confused. Okay, because representations should not be very selfish. Representations should be at a commonality so that everybody is on the same page. Anyways, we will not digress. Okay, इतना ये सब इतना time waste नहीं करना. Let's go into the how do you find the length of an array. So let's say for example मैं यहाँ पर एक simple string array, sorry, string अरे सॉरी, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग अरे बना रहा हूँ, लेट्स से जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस. ओके, म्यूट हो जा, डिस्टर्बेंस हो रही है. ओके, so let's say for example this is a very simple string array. So how will I determine the size? So generally लोग size नहीं बोलेंगे. ओके, सो कोई बोल दे, कोई पूछ लेगा इंटरव्यू में व्हाट इज द साइज ऑफ दिस अरे, तो आप बोलोगे यार साइज क्या होता है. ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट द लेंथ ऑफ एन अरे. तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू राइट दिस. सो आपको साइज पता चलेगा इस 3, एज सिंपल एज दैट. इसमें इतना कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी. सो वी विल नॉट वेस्ट मच टाइम इन दिस. एंड देन आपको इंडेक्सिंग कैसे करते हैं वो भी पता होगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एरे बनाते हैं, कुछ भी आप एक एरे ले लो, इंट लेट्स से इंट नम, सॉरी, int num equal to, let's say, new int, let's say 4. So how will you declare the indexing part of it? How will you determine the indexing part of it? So let's say, तो आप इसको अपने हिसाब से ही दे सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ऐसे कुछ आप अपना दे सकते हो. एंड हियर you can write num of 0. See, indexing of array starts from 0. ठीक है, अभी आप इसका आउटपुट निकालोगे ना, सो यू विल सी समथिंग विच इज, ये 0000 क्यों है? क्योंकि मैंने कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया इसके अंदर वैल्यू. मैंने एरे में कुछ मेमोरी में कुछ स्टोर किया क्या? जब कुछ स्टोर ही नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू छोड़ रहा है वो. बराबर. मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि इंटीजर का क्या डिफ़ॉल्ट होता है, स्ट्रिंग का क्या डिफ़ॉल्ट होता है, अलग अलग डेटा टाइप्स का डिफ़ॉल्ट. आई थिंक मैंने होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया होगा, नहीं होगा मुझे पता नहीं, सॉरी यहाँ पे सेकंड थर्ड एलिमेंट लिखना चाहिए था, बट हाँ शायद मैंने होमवर्क दिया था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होते हैं, रिटर्न टाइप्स क्या होते हैं. अगर आपने नहीं किया कोई नहीं, अगर नहीं किया तो बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगा. ठीक है, चलो मान लो मैं अभी यहाँ पर एक ऐसा एक सिंपल सा एरे बना रहा हूँ. ठीक है, मैं और एक सिंपल सा एरे बना रहा हूँ, जैसे मान लो इंट एज. ठीक है, इंट एज बोल के मैं सिंपल सा डिक्लेरेबल एरे बना रहा हूँ, 12, 10, 23, 45. ठीक है, मैं एक सिंपल सा एरे बना रहा हूँ. अब मैं आपको बोलूँगा आपको इसमें लूप थ्रू दिस होल एरे. तो हाउ विल यू डिटरमाइन कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं. यहाँ पर अभी 4 वैल्यूज़ हैं, मान लो मैंने 40,000 वैल्यूज़ डाल रखे हैं. सो मैं आपको बोलूँगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पिकअप करो, या फिर मुझे उसका पूरा हिसाब किताब चाहिए.
ठीक है. सो यू कैन यूज अ सिंपल फॉर लूप. ठीक है. फॉर इंट आई इक्वल्स टू, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो बिकॉज ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है. यू कैन राइट दिस एज एज डॉट लेंथ. अगर आप इसको आई इक्वल टू वन देना चाहो तो फिर मतलब नहीं है, वो पहला वाला पोजीशन छोड़ देगा. ठीक है. यू कैन यूज दिस एंड आपको लूप कर देना है. ठीक है. इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन समथिंग, फिर आप इसको वेरी सिंपल एज को इंडेक्सिंग से बुला लो आप. एज सिंपल एज दैट. इसमें कुछ ये क्या गड़बड़ी हुई. ओ, ठीक है. सो यू कैन डू दिस एंड यू विल सिंपली गेट the complete this of the array. It's like listing down all the elements inside the array. It's very simple. You can do this. Dot length method is mostly used. अब इसमें लेंथ माइनस वन, लेंथ प्लस वन, वो सारे फॉर लूप के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन यूज दैट. मैंने आपको फॉर ईच लूप भी बताया था. आप चाहो तो इसमें फॉर ईच लूप भी यूज करके कर सकते हैं. इट इज़ टोटली अप टू यू. और अगर आप चाहो तो आपको कुछ गूगल में जाके यू कैन फाइंड एक कुछ प्रोग्रामिंग लिख सकते हो. जैसे एक कंप्यूट सर्टेन सम और कंप्यूट सर्टेन एवरेज ऑफ सर्टेन एरे एलिमेंट्स. तो आप वो फॉर लूप लगा सकते हैं. फिर कुछ एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं, डबल डिक्लेयर कर सकते हैं. आपको अगर डेसिमल डिजिट्स के साथ करना है तो आप अपना अपना डबल वेरिएबल लगा के उसमें आप कर सकते हैं. अगर आपको एवरेज निकालना है तो फिर अगेन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा. जो आप डिक्लेयर करोगे द समेशन ऑफ द होल थिंग, और वो एरे लेंथ के साथ आपको डिवीजन वगैरह करना होगा. वो आप कर सकते हैं. एज ए होमवर्क मैं आपको एंड में दे दूंगा. अगर आप वो करना चाहें तो वो आप आराम से कर सकते हैं. वो बेसिक चीज़ें इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ विल यू कंप्यूट दिस सम एंड एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट्स. ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है. कब मेरे को बहुत पहले पूछा था. कंप्यूट दिस सम एंड एवरेज ऑफ एन एरे. तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप इंटीजर एरे ले लो, या फिर आप अगर आपको डेसिमल एरे लेना है तो डबल एरे ले लो. अकॉर्डिंगली ये एक तरीके का होमवर्क है. अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो. आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होगा. ठीक है. क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको बोला था कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. मैंने उस दिन ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि ऑपरेटर्स के ऊपर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है. एवरेज का फॉर्मूला सबको पता है. सम बाई साइज. सम क्या है? जो भी आपका एरे का डेटा टाइप होगा. मान लो आप डबल यूज कर रहे हो इंट, वो उसका सम जो आप सम वेरिएबल डिक्लेयर करोगे डिवाइडेड बाई डेटा टाइप का एरे डॉट लेंथ के साथ आपका साइज से डिवाइड करोगे. सिंपल कॉन्सेप्ट है. कोई दिक्कत नहीं होगी. आपको आराम से हो जाएगा. अच्छा, और एक चीज़ जो कभी कभी मल्टी डिमेंशनल अरेज को कैसे हम डिफाइन करते हैं. ये तो हो गया वन डिमेंशनल अरे. मल्टी डिमेंशनल अरे मान लो हम यहाँ पर मैं एक मल्टी डिमेंशनल अरे बनाता हूँ. लेट्स से एक इंटीजर मल्टी डिमेंशनल अरे. तो मैं क्या करूँगा, इंट मल्टी डिमेंशनल अरे मैं कैसे बना रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर एक अनोखी चीज़ रहती है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट लेट्स से 1 2 3. ठीक है. और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे अगर आप डिक्लेयर कर दिए और आप बोलोगे कि ठीक है अभी मल्टी डिमेंशनल अरे है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 4 5 6. ठीक है. तो एक अजीब सा एरर थ्रो करेगा. ये एरर क्या है? क्योंकि देखो ये हम बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते ऑटोमेशन में. दिस इज समथिंग विच वी डोंट डू. हम ये हरकतें बिल्कुल नहीं करते. लेकिन यार ये इंटरव्यू पर्पस के लिए देखो एक्सपीरियंस लोगों को तो ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस लोगों को ये बिल्कुल नहीं पूछते. सॉरी ये तो इधर ही है. बट कभी कभी पूछ लेते हैं. तो आपको थोड़ा इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा. मैं कुछ मिस कर रहा हूँ शायद. नहीं, सही तो है.
दो ब्रैकेट लगाए तो ओ सॉरी, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ गलती कहाँ है। तो सी, हम ऐसे कर सकते हैं, अगर इसको आपको और कॉम्प्लिकेटेड करना है तो आप मल्टी डिमेंशनल है, ये तो टू डिमेंशनल, आप थ्री डिमेंशनल कर सकते हो इसको। भाई मैं नहीं कर रहा, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें। मल्टी डिमेंशनल अरे करो, इसको और लंबा कर सकते हो। ठीक है। तो वैसे भी हम लोग ऑटोमेशन में इतना सब ये सब करते नहीं है, ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आप मल्टी डिमेंशनल एरे के भी बारे में जान सकते हो। इट्स और मल्टी डिमेंशनल एरे अगर न्यू कीवर्ड के तहत आप बनाना चाहो तो उसको भी आप बना सकते हो। लेट्स से स्ट्रिंग एम डी मल्टी डिमेंशनल एरे। अगर आप स्ट्रिंग के साथ भी बनाना चाहते हो तो मतलब ऐसे न्यू कीवर्ड के साथ भी बनाना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ भी लिख देना, टू कॉमा, सॉरी टू कॉमा बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ भी आप लिख के आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। सी एट द एंड what happens is these are nothing but rows and columns। अभी आई एम नॉट a very good painter, अदरवाइज मैं आपको टेबल में पेंट करके समझा देता कि एक्चुअली वो जो चीज़ हो रही है ना वो इस हिसाब से हो रही है। तो अगर मान लो हमने टू रोज और थ्री कॉलम्स लिखा ना इधर, हाँ टू और थ्री, तो बोले तो एक रो और ये दो रो, साला इतना गैप हो गया, लेकिन तीन कॉलम बनेंगे इधर। ठीक है। और यहाँ पर वो वैल्यू पुट होगा, तो आप अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे पुट करना है वैल्यू इधर पुट करो, इसको यहाँ पर वैल्यू एक एक करके डिक्लेयर करो और एक एक करके पुट करते जाओ। यार ये बहुत ही बोरिंग काम है, मेरे से ना हो पाई, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना। वैसे भी इसका काम ऑटोमेशन में डेटा प्रोवाइडर में ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है। ये बहुत ही बोरिंग काम है, मेरे को नहीं पसंद, बस बताने का था, मैंने बता दिया, आप बाकी गूगल कर लेना। ठीक है। तो ये हमारा मल्टी डिमेंशनल और टू डिमेंशनल और वन डिमेंशनल एरे हो जाता है। ये थोड़ा बोरिंग काम है, मेरे से ना हो पाई, आप कर लेना खुद। बहुत ईजी है, कुछ सिंपल है, मेरे को ये लिखने को ना बहुत इरिटेशन होती है। डेटा प्रोवाइडर में ही हम इसको यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा ये मल्टी डिमेंशनल एरे का इतना कोई बहुत यूजेज नहीं है। कभी कभी यूज़ होता है, बट अगेन डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। बस हाँ इसको प्रैक्टिस कर देना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है कि बोरिंग है तो आप छोड़ दो, नहीं भाई मेरे को बोरिंग लगता है, आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। थ्री डिमेंशनल अरे मैंने आज तक ऑटोमेशन में यूज़ नहीं किया है। अगर आपको थ्री डिमेंशनल अरे के बारे में पढ़ना है तो भैया पढ़ लेना, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, उसका वो तीन तीन स्क्वायर बॉक्सेस लगते हैं, फिर दो दो वो लगते हैं, फिर फाइनली टर्मिनेट होता है सेमीकोलन के साथ। वो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन उसका बहुत ही पेचीदा टाइप होता है, मेरे को इरिटेटिंग लगता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको उस चीज़ में घुसना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको फाइनल चीज़ बताऊंगा, वो आपका ऑब्जेक्ट अरे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा, डिड एनीवन टेल यू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट अरे इज द पेरेंट ऑफ ऑल अरेज इन जावा, नो दैट इज नॉट द केस। बट you should always remember object class is the parent of all the classes in Java. So uh, we need to understand that why, पहली first question, why are we using object arrays? Okay, see, the name itself suggests because the uh, name itself suggests because object word is used in it, that it stores an array of objects, unlike the homogeneous type of array which we just learnt। मतलब इंटीजर में स्ट्रिंग नहीं घुस सकता, स्ट्रिंग में कोई और नहीं घुस सकता। सो फॉर दैट पर्पज ओनली वी आर using object array। Okay, so it's very simple, you create an object array and you store anything, you can store an integer value, you can store a double, you can store a string, you can store any type of data type, it is very simple। उसमें कोई, you just have to use the object, and there are certain ways you have to instantiate a particular area to actually use that particular ऑब्जेक्ट। और हाँ, इनिशियलाइजिंग एरे ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंस्टेंशिएट इट।
इनिशियलाइज करना पड़ेगा। वो इनिशियलाइज इंस्टेंशिएशन के लिए आपको यू कैन यूज कंस्ट्रक्टर्स एज वेल, और यू कैन यूज ए सेपरेट मेंबर मेथड। आपके ऊपर है कि आपको किस तरह का ऑब्जेक्ट एरे डिक्लेयर करना है, किस तरह का ऑब्जेक्ट एरे बनाना है। तो आप प्लीज़ ऑब्जेक्ट एरे के बारे में भी गूगल से पढ़ लेना। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर हैसल। इट्स वेरी सिंपल। आप ऑब्जेक्ट क्लास यूज़ करो और एक ऑब्जेक्ट एरे बना दो, उसको इनिशियलाइज करो। अभी तो कंस्ट्रक्टर्स वगैरह मैंने पढ़ाई नहीं है, बट ठीक है, मैं ओके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज मैं करवा देता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसके लिए दूसरा क्लास बनाता हूँ। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जो हमारा स्टेटमेंट है। सी, दिस इज नोन एज द ऑब्जेक्ट क्लास। अगर आप गूगल करोगे, वन सेकेंड, the object class is the parent class of all classes in Java by default. Okay, that means if we are using this particular object array to determine to create something directly with this class, obviously it will supersede everything. So how am I going to create an object array over here? Let's say obj. Did it throw an error? It did not. It works fine. So accordingly, using the same concept of all these things, आप यहाँ पर भी अपना नामकरण करो। ऑब्जेक्ट एरे को भी न्यू कीवर्ड से आप बनाओ। देखो मेरे को इसे बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है। आप न्यू कीवर्ड से भी ऑब्जेक्ट एरे बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप मल्टी डिमेंशनल भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको और शौक है तो आप ये थ्री डिमेंशनल एरे भी ट्राई कर सकते हो। और अकॉर्डिंगली आपको फॉर लूप लगाने का कॉन्सेप्ट है, फॉर लूप लगाओ। आपको कुछ प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं, प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कर लो अरेस के ऊपर। ये बेसिक्स इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी इन डेप्थ अरेस के ऊपर जो सॉर्टिंग वगैरह के हैं, वो जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर लेनी पड़ेंगी। मेरे को यहाँ आज ऑटोमेशन क्लास में ना इनके ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कशन मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता है। आप देख लेना, इट्स वेरी इजी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एरे को कुछ भी एक मतलब मान लो आपने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट एरे के रेफरेंस से आप उस, मान लो एक एम्प्लॉय है जिसमें 5-6 एम्प्लॉयज़ हैं, आप उस एम्प्लॉय के इंडेक्सिंग से ऑब्जेक्ट ज़ीरो करके आप न्यू एम्प्लॉय कर सकते हो। उसमें अपना दो वैल्यूज़ डाल सकते हो, जैसे कि आपका नाम और आपका एम्प्लॉय आईडी। अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को आप इंडेक्सिंग से कॉल भी कर सकते हो। अगर एक साथ सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करना है ऑब्जेक्ट एरे में, तो आप फॉर लूप भी लगा सकते हो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट एरे में ऐसे कोई स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिस वाला फंडा तो नहीं है। इट इज़ मोस्टली अबाउट रिप्रेजेंटिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव, द डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट in different types of data types, and combining together and showcasing that. So this is mostly for the data types which we have learned. ठीक है, so this is about arrays, one dimensional, basics of array, one dimensional array, two dimensional array, three dimensional array or multi-dimensional array, and object array. Just use the object class and accordingly you create the object class. आप चाहो तो object class का new keyword से भी you can create the object. Yeah, someone was saying something.
हम्म 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 डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन इन जावा की बात कर रहा, राइट? सी, अगर एक जावा प्रोग्राम की बात करें, अगर एक्सप्लिसिटली कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, तो जितने भी देख, जावा में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, बराबर। एक होता है अपना इंस्टेंस वेरिएबल, और एक होता है, तीन तरह के वेरिएबल होते हैं: इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। तो जो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स होता है, अगर उसमें हम कुछ एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो फिर इंटीजर का ज़ीरो आता है, फ्लोट का भी ज़ीरो, ज़ीरो ही आता है, मतलब 0.00 टाइप कुछ आएगा। बूलियन का डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स आता है, स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल, और ऑब्जेक्ट का भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल ही आता है। सो ऑब्जेक्ट क्लास भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल थ्रो करता है, राइट? लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्लास, हाँ, हम्म, नहीं, मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्लास डिफाइंस द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप्स। मुझे तो, अगर ऑब्जेक्ट क्लास डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेटा टाइप करता है, तो ऑब्जेक्ट को वो डिफ़ॉल्ट को नल क्यों लेता है फिर? तो स्ट्रिंग इज ऑल्सो ए क्लास, एंड string is the object, might be the parent of all classes, but string is the god of all classes in Java. Agree or not? Okay. Short of time. So see, the thing is, ऑब्जेक्ट अरे अगर ऑब्जेक्ट अरे इनिशियलाइजेशन और डिफॉल्ट वैल्यू को डिफाइन करता, तो स्ट्रिंग का डिफॉल्ट भी नल रखा। ऑब्जेक्ट अगर पेरेंट है, स्ट्रिंग, सी, स्ट्रिंग इज द गॉड ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा, ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा। तो इफ स्ट्रिंग का भी नल है, तो ऑब्जेक्ट को नल ना दे के कुछ तो एक ऐसा देना चाहिए था जावा में, जो कि वो डिफाइन कर सके। हालांकि मुझे इतना आइडिया नहीं है कि एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट का खेल है या फिर किसी और का खेल है। अगर ऑब्जेक्ट का खेल है, तो भैया उसने अपने आप को एक्सप्लिसिट एक रिटर्न वैल्यू देना था ना डिफॉल्ट का, उसने अपने आप को जो दिया, उसने स्ट्रिंग को वही दिया। तो तो फिर मैं ये भी तो वो कर सकता हूँ कि स्ट्रिंग इज प्लेइंग गेम्स, but again string is not the parent of all classes. String b is one of the descendants of object class. So I don't know about this, maybe we can find out. Anyways, that is for a different discussion altogether. So this is mostly about arrays. बाकी जो इन डेप्थ हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे, उसमें एरेस का बहुत कॉन्सेप्ट होगा। तो आप इसका बेसिक चीज़ आप अच्छे से याद कर लो। और कल मैंने जो आप लोगों को एक सिंपल असाइनमेंट दिया था, दो तीन लोगों ने ही रिप्लाई किया। अक्षय ने काफ़ी गलत किया, आकाश ने किया, निकी का लेटेस्ट आया होगा, मैंने चेक नहीं किया, और पूनम का ऑलमोस्ट करेक्ट ही था। ठीक है। तो बाकी आज मैं आप लोगों को उसका एक फ्लो दिखाऊंगा कि वो फ्लो आप कैसे ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, इसको बंद करो। एरेज आप अच्छे से पढ़ लेना, जितने भी डाउट्स हो पूछ लेना। मेरे को एरे कोड करने में ना बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। एक स्क्वायर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, बहुत बोरिंग लगता है मेरे को। आपको जो डाउट है पूछ लेना, मैं फटाफट बता दूंगा। अभी यहाँ कोड मत करवाओ मुझसे। ठीक है, अभी हमारा कहाँ गया था? अच्छा, ऑटोमेशन हब ट्रेनिंग में न्यू क्लास में फ्लो वैलिडेशन यूजिंग एक्सपाथ। ठीक है, मैं आपको सिंपल वही वही करने के लिए बोल रहा हूँ जो आप लोगों ने कल किया था। ठीक है,
ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अच्छा मैं आपको आज दो और लाइंस ऑफ कोड के बारे में बताना चाहता हूँ जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट. ये टाइम लॉन्ग फॉर्मेट में है और टाइम यूनिट और यूनिट्स में है. तो अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप टाइम दे दो 120 और ये टाइम यूनिट का कैटेगरी में आएगा, टाइम यूनिट डॉट सेकेंड्स आपको देना पड़ेगा. ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड याद रख लो. पूछा जाता है इंटरव्यू में बेसिक्स को कि व्हाट इज द इम्प्लिसिटली वेट का सिंटैक्स बताओ. आप ये भी बता सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन डू दिस, प्रैक्टिस कर लो. नाउ द नेक्स्ट इज, ओके नाउ व्हाट आई वांटेड यू टू डू वाज, आपने ये खोला, साइन इन लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया, इसको इसका एंटर करा, इसका एंटर करा पासवर्ड, इसका साइन इन बटन पे क्लिक किया और फिर वो बाहर निकल गया. तो मैं क्या चाहता हूँ कि वी विल राइट द एक्सपाथ हियर, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, सॉरी, बाय डॉट एक्सपाथ. सो इसका एक्सपाथ क्या है, साइन इन लिंक का. You can use any of the XPaths which we discussed yesterday. Like यहाँ पे class इसका sign in है, so I'll directly use /a @class equal to single quote sign in. Simple, ये मेरा 1 of 1 आ रहा है, उठाया, copy dot click. ठीक है. Now when it comes here, you will enter this as a username. यूज़रनेम को एंटर करने के लिए व्हाट इज इसका इसका एक्सपाथ हम डिज़ाइन करेंगे. इसके पास क्या है, आईडी लॉगिन 1 है, मैं आईडी ले लेता हूँ. इसका HTML टैग है इनपुट @id इक्वल टू सिंगल कोट लॉगिन 1. देखो 1 of 1, आई विल यूज दिस, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ डॉट सेंड कीज. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पासवर्ड. पासवर्ड को भी इंस्पेक्ट करेंगे. इसके पास है आईडी पासवर्ड इनपुट, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये भी हो गया, कंट्रोल सी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फिर से बाय डॉट एक्सपाथ डॉट सेंड कीज. ओके, देन यू हैव टू फाइंड द एक्सपाथ ऑफ दिस बटन. बटन के पास क्लास है और आईडी नहीं है, नेम है और क्लास है. मैं क्लास ले लूँगा, कंट्रोल सी, इनपुट मैं यहाँ पे चेप दूंगा और यहाँ पे दे दूंगा क्लास. देखो 1 of 1 आ गया, उठाया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ डॉट क्लिक, क्योंकि बटन है. ठीक है, we'll log in into this account and we'll find the logout link. We'll inspect this. इसके पास भी एक क्लास rd underscore logout है, @a है, a @class equal to c. This one is also 1 of 1, control C, driver dot find element by dot XPath. I'm entering this dot click, so it will log out. So up to here it will log out. So जैसे ही log out होता है, you have this rediff home link, inspect, control F, rediff home. So what I'll do, I can write directly
डायरेक्टली दिस यूजिंग कंटेन्स टेक्स्ट को मैं इसको नहीं करूँगा, मैं इसको बनाऊँगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्लास, मतलब डायनेमिक एक्सपाथ बनाऊँगा। आई विल कम फ्रॉम हियर, ठीक है, div @class इक्वल टू सिंगल कोट ये, ठीक है, आई एम हियर, नाउ आई वांट टू कम हियर, so somehow this is the descendant, I can use descendant b, okay, ओके सॉरी, वही मैं सोचूं गलती क्या है। थैंक्स, सो आई कैन यूज डिसेंडेंट डी। अगर यहाँ पे मैं और ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश करूँ देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, I can make it like this, rediff space home, this is fine, this will work. So I'll use this one as an XPath and I'll come here by dot XPath and dot click, it will again get me to the same location. See, you will do this, मैंने एक चीज़ नहीं की जो आपने करनी है। What did I write here? Flow। मैंने क्या चीज़ नहीं की? वैलिडेशन। मैंने कहीं पर भी वैलिडेशन नहीं किया है, मैं अभी क्या किया, सिर्फ फ्लो किया। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। आप लोग फ्लो पे नहीं फोकस करोगे, आप लोग वैलिडेशन करोगे ईच एवरी फ्लो के बाद। वो वैलिडेशन कैसे करेंगे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। पहले हम देख लेते हैं कि ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। सी, मेरे सिस्टम में स्लो होगा, मेरा सिस्टम बहुत स्लो है, मेरे को बहुत टाइम भी लगेगा, लेकिन आपके सिस्टम में ये फास्ट हो जाएगा। निकी अगर अपने ऑफिस सिस्टम में पता नहीं क्या ट्राई कर रही है, उसका हो नहीं रहा, मुझे इतना नहीं, क्योंकि मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। निकी सॉरी, ये सिस्टम ऑफिस सिस्टम का कुछ लफड़ा है। तो यहाँ पर क्या लफड़ा है भाई? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ओके, सो द मिस्टेक विच आई डिड वाज, मैंने यहाँ पे वो नहीं दिया, हालांकि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसे ही रन करता है क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन चलो दोबारा रन कर लेते हैं। अब ये सब फालतूगिरी क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। हो सकता है फेल हो जाए, बट मेरा तो लेटेस्ट ही वेब ड्राइवर मैनेजर है, और लेटेस्ट वेब ड्राइवर मैनेजर में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हाँ, अब जाके आएगा, अब जाके इसने, देखो अभी भी नहीं चल रहा। स्ट्रेंज, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा अननेसेसरली। So it has opened after a lot of time, because it had to pull out that binary. वो नाम एंटर किया, पासवर्ड भी एंटर करेगा, साइन इन बटन पे क्लिक किया, लॉग आउट पे क्लिक करेगा, फिर रेडिफ होम बटन पे भी क्लिक करेगा। अगर मैंने डॉट क्लिक दिया है तो, अगर मैंने वहाँ पे डॉट क्लिक छोड़ दिया है तो इस पर क्लिक नहीं करेगा। मैंने वहाँ पे डॉट क्लिक दिया है, हाँ मैंने किया तो है डॉट क्लिक, देखो यहाँ पे ये नहीं अभी तक क्लिक किया है इसको। लेकिन हालांकि एग्जीक्यूशन बंद नहीं हुआ है, ये टर्मिनेट हुआ नहीं है, इसको ढूंढ रहा है अभी भी, लेकिन अभी तक इसने क्लिक नहीं किया। सो समहाउ ये वाला काम नहीं किया, दिस पर्टिकुलर एक्सपाथ, इवन दो इट इज़ वन ऑफ वन। ये एक्सपाथ में हमारी कोई गलती थी नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एक्सपाथ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। देखो रेडिफ होम पे इंस्पेक्ट करोगे तो हम बराबर काम, ये काम करना चाहिए, वन ऑफ वन है, बट
नहीं किया, वो रीड नहीं किया, अभी तक वो रीड कर रहा है, उसको वो मिला ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेटिंग पीरियड भी बहुत दे रखा है, सो समहाउ इट इज़ नॉट एबल टू फाइंड। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं ऑटोमेशन टेस्टर के। ठीक है, मैंने बंद कर दिया अचानक से, देखो काम चल रहा था मैंने बंद कर दिया। So this is how an automation tester is challenged. Even though your XPath is one of one, maybe Selenium will not recognize this. So technically you will have to be very very good in XPaths to make sure that okay, this particular XPath, even if it is one of one, might not work. So Poonam, this failure of ours in the row number 25 gives you the practical answer of your question yesterday. सर वो वाला और ये वाले में क्या डिफरेंस है? तो आपको अपने नॉलेज और इंट्यूशन से वो वाला एक्सपाथ यूज करना पड़ेगा। हालांकि दोनों टेक्निकली स्क्रिप्ट वाइज सेही हैं, बट समटाइम्स सेलेनियम माइट नॉट रिकॉग्नाइज, सेलेनियम इज फेसिंग ए कंफ्यूजन विद दिस रूट एलिमेंट ऑफ माइन। अगर मैं रूट एलिमेंट हटा दूं और डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिखूं, हो सकता है सेलेनियम को दिक्कत ना आए, हो सकता है सेलेनियम इसको ना फटाक से काम कर दे। लेकिन मैं अगर भी टाइम पीरियड को 20 कर दूं ताकि जल्दी जल्दी मेरा काम हो, तो हो सकता है स्क्रिप्ट वेटिंग पीरियड की वजह से फेल हो जाए। सो ये सारे जो चैलेंजेस आते हैं एक ऑटोमेशन टेस्टर को, ठीक है, तो ये सारी चैलेंजेस को ही आपका काम है पता लगाना। देखो वो एक्सपाथ भी एकदम सही था, लेकिन वो जो क्लास था मे बी सेलेनियम उस क्लास में थोड़ा टाइम लगा रहा है। देखो अभी फास्ट हो गया, हो सकता है फेल हो जाए, यहाँ पर हो सकता है फेल हो जाए, लॉग आउट ही ना हो, लॉग आउट कर लिया, हो सकता है यहाँ पे रेडी फॉर्म पे क्लिक कर ले, अभी देखो ये वाला भी नहीं क्लिक किया। समटाइम्स इट इट जस्ट डज नॉट क्लिक, अभी भी उसको क्लिक नहीं किया और देखो वहाँ पे चल रहा है। सो फॉर सम रीजन दिस वेब एलिमेंट इज बिहेविंग फनी, इट इज नॉट, इट इज समथिंग विच इज नॉट वर्किंग फॉर दिस। ये वहां से भी काम नहीं किया और ये वाले में भी काम नहीं किया। ठीक है, अभी भी देखो रन कर रहा है, रेड है मतलब रन कर रहा है, लेकिन वो ढूंढ रहा है। लेकिन क्यों ढूंढ रहा है, वो इसका पाथ, ये वाला पाथ क्यों नहीं मिल रहा, आई डोंट नो, वो इंस्पेक्ट करके पता चलेगा। देखो सही है, एकदम परफेक्ट है, बट सम वेब एलिमेंट्स बिहेव लाइक दिस इज द जॉब ऑफ एन ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर टू डिटरमाइन how to manage such kind of naughty elements which look like absolutely perfect but they don't work. Okay, now what I did not do, what you will do, मुझे हर स्टेप पे वैलिडेशन चाहिए। हर स्टेप पे बोले तो जैसे ही आप साइन इन ये लिंक पे क्लिक करते हो, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पेज में वैलिडेशन चाहिए। एंड व्हाट वैलिडेशन यूज़ करोगे आप, मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको। आप ड्राइवर डॉट गेट टाइटल यूज़ कर सकते हैं, ड्राइवर डॉट गेट गेट करंट यूआरएल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास और भी मैंने 3 ऑप्शंस और दिए थे। कोई भी एक वेब एलिमेंट वहाँ पे मौजूद है तो उसके बेसिस पे आप यूज़ करो, नहीं तो आप फिलहाल इसमें यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप चाहो तो हर एक स्टेप में मुझे वैलिडेशन चाहिए, और ये आपका होमवर्क है। हर एक स्टेप में, सेम स्टेप में मुझे हर एक स्टेप में वैलिडेशन चाहिए कि आपने जो किया सही किया, क्योंकि ये तो फ्लो बना रहा हूँ मैं। वैलिडेशन के लिए आपको इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो इज इनेबल्ड, इज डिस्प्लेड और इज सिलेक्टेड, ये 3 मेथड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपको एक पर्टिकुलर वो यूज़ करना पड़ेगा, एक एलिमेंट, और देखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं। तो मुझे हर स्टेप पे वैलिडेशन चाहिए। तो दिस इज़ योर होमवर्क, एंड सारी की सारी एक्सपाथ्स में रहेंगी। और ये तो मैंने बहुत ही बेसिक एक्सपाथ लगा लिया, आपका काम है आप ये बेसिक एक्सपाथ यूज़ ही नहीं करोगे, ये तो डायरेक्ट एक्सपाथ है, एट्रीब्यूट डाल के कर दिया, नहीं। आपका काम है कि सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड एक्सपाथ यूज़ करोगे। कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायनेमिक एक्सपाथ यूज़ किया था, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो एक्सपाथ यूज़ करो थोड़ा बड़ा वाला एक्सपाथ यूज़ करो। ठीक है, कोई भी पेरेंट, चाइल्ड, फॉलोइंग, सिबलिंग, एंसेस्टर, डिसेंडेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये एक्सपाथ लिखो। मेरी तरह यहाँ पे सिंपल सिंपल एक्सपाथ मत लिखने बैठ जाओ।
अब आप बोलोगे सर ये वाला कॉम्प्लिकेटेड लिखा आपने, काम नहीं हुआ, ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ ये आप कर लो। तो आज हमने अरेस के बारे में पढ़ा, आपको अरेस का बहुत ज़्यादा होमवर्क भी मैंने दिया है, आप अरेस का सारा होमवर्क करेंगे, ये वाला दोनों पार्ट होमवर्क करेंगे, राइट डायनामिक एक्सपाथ्स, ठीक है, एंड वैलिडेशंस, ये मेरे को चाहिए। और आप सारे के सारे अपने ग्रुप में अपना कोड स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर देना, इतना करना। मुझे यहाँ पे सारे के सारे वैलिडेशंस भी चाहिए, हर स्टेप का वैलिडेशन। खाली फ्लो लिखने से मतलब नहीं, यू आर नॉट ए फ्लो इंजीनियर, यू आर ए टेस्ट इंजीनियर। टेस्ट इंजीनियर को क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन, ठीक है। एनी डाउट्स इन डूइंग दिस और हैविंग डाउट्स इन दिस एक्सरसाइज, एनी ऑफ यू? हो जाएगा कल, कल तक मिल जाएगा। ओके, चलो, ओके।